Hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss, we are going to revise the current affairs, the important current affairs for the upcoming CUET examination. So what we'll do is I'll give you a question and you have to answer it. And these are the latest important current affairs questions or the events that has happened in the last 1 or 2 months specifically. In the last few months, the questions that were or the things which were in the news, we will discuss it in today's class. So let us begin with today's class. So if I am audible, visible, if everything is fine, please write yes in the comments so that we can begin with the class. So let us begin with this. Here's the first question. The first question says, India has swiftly launched an operation to assist Myanmar after a devastating 7.7 earthquake hit Myanmar. So basically, I hope you are aware. So Myanmar is a country which is a neighboring country of India. It's a neighbor. And few weeks back, I would say we have seen almost on Richter scale 7.7 Richter scale earthquake. And after that, India has decided to help Myanmar by a particular name of a particular operation. What is the name of that operation? Operation Vishnu, Operation Ganesha, Operation Bharata, Operation Brahma. What is the right answer to this question? Kya sahi jawab? If you know the answer, please answer me. And these orange dress people, actually, these are people from NDRF, mostly National Disaster Response Force. Their dress is orange in color. So the name of the operation is Operation D. Operation Brahma is the right answer to this question. Okay. So Indian government launched Operation Brahma to assist Myanmar after a 7.7 Richter scale magnitude earthquake hit. So here is India. And on the eastern side, you will find a country called as Myanmar. And what is the capital of Myanmar? So the capital of Myanmar is Nai Pitao. And the currency is Kyat. Okay. That is what you should be doing. And I hope you are aware that it had witnessed on 1st February 2021, it had witnessed military coup. Okay. That is what you should know. Military coup means the democratic government was overthrown by military. And currently the army chief Min Aung Hlaing is ruling this country as a prime minister. He's the army chief, Min Aung Hlaing, H-L-I-A-I-N-G. His name is taken. So that is what you should know because these are in the news. So of course they can ask questions from here. And the next is Dash. So I hope you are aware IIMs are very famous, topmost business schools or MBA schools in India. One of the IIM is going to open in Dubai. Dubai is actually a city in UAE, United Arab Emirates. There's a country by the name of UAE. Okay. So that Dash is set to launch first international campus. So which IIM? थोड़ी हिंदी में समझा दो. अच्छा ठीक है, मैं हिंदी भी बोल दूंगा. ठीक है. तो IIM समझते हो ना? IIM Indian Institute of Management. So different IIMs are there in India. कई सारे IIMs है. उसमें से एक IIM जो दुबई में खुलने जा रहा है, उसका एक सेंटर. So that is actually what is the answer? बताओ. Please tell me. I'll speak in both the language. Nothing to worry. मैं English और हिंदी दोनों में बोल दूंगा. परेशान होने का नहीं. The right answer is IIM Ahmedabad. A is the right answer to this question. So यहाँ पर इंडिया है. इंडिया में अहमदाबाद है. This is actually Ahmedabad. It's a place in Gujarat. ठीक है. गुजरात स्टेट में अहमदाबाद है. यहाँ पर एक कॉलेज है IIM अहमदाबाद. इसका एक ब्रांच यहाँ खुल रहा है दुबई में. ठीक है. ओके. और दुबई UAE में पड़ता है. So UAE is a country where you will find Dubai. ठीक है. ये आपको पता होना चाहिए. Okay. Let's move on to the next one. देखो GI टैक्स दिया जाता है. GI टैक्स समझते हो ना? GI टैग मतलब जैसे एक तरह का what we can explain, यानी जैसे आप कॉपीराइट कैसे होता है? Actually it's an example of intellectual property rights. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल GI टैग अगर किसी रीजन को दिया गया, इसका मतलब है कि ये चीज जैसे सौदागरी ब्लॉक प्रिंट ये इस पर्टिकुलर जगह में पाया जाता है ओरिजिनली. So that is the idea of GI tag. So this is सौदागरी block print. You have to tell me that which city has got GI tag. It means originally
this block printing belongs to this city. Block printing, this is done on clothes. तो कपड़ा पर एक तरह का ब्लॉक प्रिंटिंग किया था, उसका नाम है सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, ठीक है। तो कौन से शहर में ओरिजिनली सबसे पहले शुरू किया गया था, उसी को जीआई टैग दिया गया। Which city is associated with this? If you know the answer, yes, Kushagra, very good. Right answer is Ahmedabad is the right answer. ठीक है, that is what you should know, है ना। The next is recently Elon Musk owned SpaceX announced its maiden पहला first polar orbit mission. What is its name? एलॉन मस्क जो है वो आई होप आपने नाम सुना होगा, ये यूएस बिलियनर है। उनकी एक कंपनी है स्पेस एक्स, जो कि स्पेस की कंपनी है। उन्होंने पहला पोलर मिशन भेजा है नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। जैसे इंडिया में सतीश धवन स्पेस सेंटर है ना, वी हैव सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा फ्रॉम वेयर वी लॉन्च सैटेलाइट। सिमिलरली कैनेडी स्पेस सेंटर से यूएस में सैटेलाइट लॉन्च होता है। So the right answer is Fram 2C is the right answer, ठीक है। The first human space flight to Earth polar region. Polar region मतलब जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का नॉर्थ पोल हुआ, ये अर्थ का साउथ पोल हुआ। तो पोल्स के आसपास रिसर्च होगा प्राइमरीली, ठीक है। So their main intention is to research on this region, ठीक है। That is what you should know. Fram 2 actually इसका नाम है, ठीक है। और कहाँ से लॉन्च होगा? ऑफ कोर्स देखो ये इंडिया है, दिस इज यूएसए, ये फ्लोरिडा है। तो फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर है, फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर, ठीक है। दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। यस, द राइट आंसर इज सी। द नेक्स्ट इज रिसेंटली हु वन मेंस सिंगल टेनिस टाइटल एट 2025 मियामी ओपन। ये ओपन करके जो होता है, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ये सब जो होता है दीज आर लॉन टेनिस मैचेस, है ना। लॉन टेनिस का मैच होता है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इन इंडिया वी हैव ओनली क्रिकेट लवर्स। तो क्रिकेट के अलावा और किसी का इंफॉर्मेशन लोगों को होती ही नहीं है, बट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मियामी इज अ प्लेस इन फ्लोरिडा, ठीक है। तो यहाँ मियामी ओपन और 4 बहुत फेमस होता है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन, वेम्बल्डन, फ्रेंच ओपन, है ना, एक और होता है ना। सो 4 आर फेमस वंस, बट ऐसे पता होना चाहिए। देखो इसका आंसर है जैकोब मेंसिक, सो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। The next one is theme of 6th BIMSTEC summit. अभी एक्चुअली क्या हुआ कुछ दिन पहले, आई थिंक 1 or 2 months back, बैंकॉक थाईलैंड में BIMSTEC की समिट हुई थी। पीएम मोदी वाज आल्सो इनवाइटेड देयर बिकॉज़ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ BIMSTEC, ठीक है। तो BIMSTEC में इंडिया भी हिस्सा है, तो मोदी जी को ही बुलाया गया था बैंकॉक थाईलैंड में, तो वो गए थे। 6th BIMSTEC समिट हुई थी। आपको ये बताना है कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सॉरी उसका थीम क्या है इस साल हुआ था। व्हाट वाज द थीम दिस ईयर जो BIMSTEC समिट हुई थी? BIMSTEC का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मैं बता दूंगा, जस्ट वेट। फर्स्ट प्लीज टेल मी दिस। यस, वेरी गुड कुशाग्रा, राइट। प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन BIMSTEC। लास्ट में BIMSTEC हो गई, इस तरह याद कर सकते हो। तो अच्छा, BIMSTEC में कितनी कंट्रीज है? हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन BIMSTEC? देखो ये है BIMSTEC का फुल फॉर्म, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये 7 कंट्रीज उसके मेंबर है, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल से किसको किसको फायदा हो रहा है? विच कंट्रीज आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम बे ऑफ बंगाल? इंडिया को फायदा हो रहा है, बांग्लादेश को फायदा हो रहा है, म्यांमार इज गेटिंग बेनिफिट, थाईलैंड इज गेटिंग बेनिफिट, श्रीलंका इज गेटिंग बेनिफिट, बट नेपाल और भूटान को भी फायदा होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोलकाता पोर्ट है, यहाँ से ट्रक से जाता है सामान, है ना। So even Nepal and Bhutan do get benefit from Bay of Bengal, ठीक है। So 7 countries which are getting benefited from Bay of Bengal, तो उनकी एक ग्रुपिंग है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है BIMSTEC का? Where is the headquarter of BIMSTEC? और अभी जो BIMSTEC की समिट हुई थी यहाँ बैंकॉक में हुआ था, है ना। तो इस साल जो BIMSTEC समिट हुई 2025 में, हाँ, नेपाल में भूटान यूजेस इंडिया एक्सपोर्ट, राइट। सो BIMSTEC हेडक्वार्टर है बांग्लादेश में, ढाका में, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए, अक्सर न्यूज में रहता है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। फिर एक और क्वेश्चन आता है सार्क पर। सार्क में कितनी कंट्रीज है? हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर? ऐसे क्वेश्चन आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, एंड वन ऑफ द ऑप्शन वाज चाइना। तो चाइना सार्क का मेंबर नहीं है। तो देखो ये तो 7 कंट्रीज हो गई BIMSTEC की। सार्क की जो कंट्रीज है उसमें क्या करना है, BIMSTEC की जितनी कंट्रीज में म्यांमार, थाईलैंड हटा देना है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ऐड करना, और यहाँ पे मालदीव ऐड कर देना, ठीक है। So if you remove Myanmar, Thailand and add Afghanistan, Pakistan and Maldives in BIMSTEC, it will become SARC.
तो पहले 7 कंट्रीज था, 2 माइनस किया और 3 ऐड किया, सो इट बिकम्स 8 कंट्रीज। ठीक है, तो 3 ऐड किया कौन कौन है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव ऐड कर दिया, और जो 2 माइनस किया वो कौन सा है, म्यांमार एंड थाईलैंड। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, सो ट्राई टू रिमेंबर इट, बिकॉज देखो अब चाइना मेंबर नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन आता है सर, इफ यू सी सीयूटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, दे विल गिव 4 ऑप्शन, वन वुड बी चाइना, लेट्स से, तो चाइना नहीं होगा। ठीक है, सार्क वेबसाइट कहीं चाइना नहीं है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, है ना, इस तरह क्वेश्चन देखना बहुत आता है। द गोल्ड मर्करी अवार्ड फॉर पीस एंड सस्टेनेबिलिटी वाज प्रेजेंटेड बाय एन एनजीओ कॉल्ड एज गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल, तो किसको दिया गया, हु गॉट इट, मतलब बस आपको इतना याद रखना है कि गोल्ड मर्करी अवार्ड है, जो कि गोल्ड मर्करी नाम की एक एनजीओ संस्था उसने दिया है। तो गोल्ड मर्करी अवार्ड किसको दिया गया, जस्ट यू रिमेंबर दिस, दैट हु हैज गॉट गोल्ड मर्करी अवार्ड। एंड yes Kushagra, very good, Dalai Lama, and he is actually a Buddhist, Tibetan Buddhist leader, है ना। So D is the right answer to this question. ठीक है, so it is Tibetan Buddhist leader, है ना, and that is what you should be knowing. तो तिब्बत यहाँ पर है, this region is Tibet, है ना, but he is living in exile in India, I hope you are aware। ठीक है, तो इंडिया में रह रहे हैं, हालांकि जो ओरिजिनली है वो तिब्बत से बिलोंग करते हैं। ठीक है, The next is the 4th edition of Tri Service. Tri Service का मतलब होता है तीनों सर्विस, यानी एयर फोर्स, नेवी और आर्मी तीनों इन्वॉल्व थी, मतलब इंडिया और यूएस की। HADR, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ। इसमें ये होता है कि बेसिकली ऑल द 3 नेवी, एयर फोर्स एंड आर्मी, दे डू अ डील विद मिलिट्री एक्सरसाइज विद यूएस। इसमें होता है कि एक्सचेंज ऑफ ये होता है डिजास्टर मैनेजमेंट टेक्निक्स, इस तरह समझ लेना कि आई होप यू आर अवेयर, जब इमरजेंसी होती है, जब डिजास्टर होती है, सो मिलिट्री कम्स एंड हेल्प्स, है ना, मिलिट्री आती है, मदद करती है, जब बहुत कंट्रोल से बाहर हो जाता है, कहीं डिजास्टर, कहीं फ्लड आ गया, कुछ हो गया, ऐसा समथिंग लाइक दैट। So of course this is actually exercise between India and US, tri service exercise called as Tiger Trump। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे, ट्राई सर्विस टी है तो टी टी, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे कुछ याद करने का तरीका है, यू कैन रिमेंबर इट। यहाँ देखो ना, ट्राई लिखा ना है, तो यहाँ भी TRI मिल रहा है, TRIUMPH, ओके। सो लाइक दिस इज जस्ट अ वे टू रिमेंबर, याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ ताकि एग्जाम हॉल में हेल्पफुल होता है ये सब, है ना। 1 से 13 अप्रैल 2025 को हो गया। So small is at horizon, so is Tiger Trump will be seen. This is done already last month. ठीक है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ था ये, ईस्ट कोस्ट में। The next says which of the following countries became the first in the world to launch commercial drone taxi service? US, Germany, China, Japan। क्या सही जवाब है? Commercial drone taxi service। Yes, the right answer is C. China is the right answer. Yes, Kushagra, right, है ना। So ये, और बनाने वाली कंपनी का जो नाम है E-Hang Holdings एंड हाई एविएशन ने मिलकर बनाया। ठीक है, ये इसका ब्रांड नेम ES216S। ठीक है, ये वाले थे फॉरनी। लेट्स मूव ऑन। मेंस एशिया कप 2025 कहाँ होगा? और एक और चीज बताओ, खेलो इंडिया यूथ गेम कौन से स्टेट में हो रहा है? दिस इज आल्सो करेंटली हैपनिंग। हाँ, ये राजगीर बिहार में होगा, मेंस एशिया कप 2025, और खेलो इंडिया यूथ गेम इज आल्सो हैपनिंग इन बिहार। ठीक है, स्टार्टेड फ्रॉम पाटलिपुत्रा स्टेडियम, है ना। तो ये राजगीर, ये तो मेंस हॉकी कप जो है 27 अगस्त से 7 सितंबर होगा। ठीक है, इन राजगीर। ठीक है, और अभी जो है ना 4 से 15 मई तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स, है ना, इज एक्चुअली बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया, इन बिहार आई वुड से। ठीक है, और बिहार में पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है पटना में, वहां इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, 4 मई को। एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया वाज आल्सो प्रेजेंट। तो जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर इंडिया के वो भी प्रेजेंट मौजूद थे। ठीक है, एंड वी आर प्लानिंग कि 2036 में हो सकता है, we'll be having, we are planning to host Olympics। अभी श्योरिटी नहीं है, बट yes, we are planning for that। Let's move on to the next one. Who has been appointed as the 7th Secretary General of Commonwealth Nations?
फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन टू होल्ड दिस पोजीशन? क्या सही जवाब? सो द राइट आंसर इज, तो ये जो है डीजी है क्या जिसकी WTO की नगोजो कोजो वाला ऑप्शन डी जो है. So here the right answer is B, Shirley Botchway. So B is the right answer to this question. है ना? घाना से बिलोंग करती है, घाना एक कंट्री अफ्रीका में. That is what you should be knowing. Next is China's military drill that was conducted near Taiwan recently. बताइए. China's military drill है ना, स्ट्रेट ऑफ ताइवान में हुआ. सो स्ट्रेट थंडर. सो बी इज द राइट आंसर. यस कुशागर, वेरी गुड. क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये चाइना है, ये ताइवान है. सो आई होप यू आर अवेयर दे आर नॉट एट ऑड्स. तो चाइना और ताइवान का बहुत अच्छा रिश्ता नहीं है. हम उतना पास्ट हिस्ट्री में नहीं जा रहे, बट यू शुड नो. और ये जो है स्ट्रेट ऑफ ताइवान है, ठीक है. तो यहीं पर किया गया. तो चाइना एंड ताइवान डू नॉट हैव वेरी गुड रिलेशन एंड दैट इज व्हाई दे आर एट ऑड्स. तो उन्होंने अपना किया, ठीक है, स्ट्रेट थंडर 2025 एक्सरसाइज एंड ऑल, ठीक है. Okay, let's move on to the next one. Name the Formula 1. जैसे Formula 1 देखो, कार रेस की बात हो रही है ना, कार रेस ड्राइवर है ना. एक कार रेस ड्राइवर थे, इन्होंने डेब्यू मतलब फर्स्ट बुक लिखा है ड्राइव टू विक्ट्री. इस फर्स्ट बुक ये इंडिया के फॉर्मर मतलब पहले कार ड्राइवर, कार रेस यानी जो Formula 1 कार रेस होता है उसके ड्राइवर भी रह चुके हैं. The right answer is option C. Karun Chandok is the right answer. Yes, Priyansh Gupta, you are right. This is a person and this is the child who's being given this drive to victory. Yes, Koshagara, you are also right. C is the right answer. Let's move on to the next one. Recently, RBI की एक deputy governor बनाई गई for 3 years. A female has been appointed. What is the right answer? Yes, Koshagara, right. Priyansh Gupta, right. So B is the right answer. Poonam Gupta is the right answer to this question. हाँ, first woman to hold position over a decade. तो देखो आरबीआई के जो गवर्नर है उनका नाम है मिस्टर के संजय मल्होत्रा एंड देयर आर 4 डेप्यूटी गवर्नर्स. सबके नाम नहीं याद रखने होते, बट जनरली सिंस शी इज इन द न्यूज़ रिसेंटली दैट इज व्हाई यू कैन रिमेंबर इट, ठीक है. अच्छा, आरबीआई, कैन यू प्लीज टेल मी दैट आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है? वेरी इजी क्वेश्चन बट स्टिल आई वांट. हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई कहां मिलेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अच्छा, एक दो और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. हाँ, मुंबई में जो करेंसी नोट होता है उस पर सिग्नेचर किसका होता है? जो कोई भी नोट होता है, जैसे 500 रुपए का नोट है, उस पर लिखा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. यहाँ पे एक सिग्नेचर का, यहाँ पे किसका साइन होता है? पोस्ट सिग्नेचर यू विल फाइंड. हाँ, आरबीआई गवर्नर. लेकिन अगर ये 500 की जगह 1 रुपए का नोट है, तब किसका सिग्नेचर होता है? Generally it is, yes, very good, it is RBI governor signature you will find on the note. लेकिन अगर 1 रुपए का नोट है तो किसका सिग्नेचर होता है? आरबीआई गवर्नर का नहीं होता है. किसी एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था. फाइनेंस सेक्रेटरी, वेरी गुड प्रियांश गुप्ता. अगर 1 रुपए का नोट है तो फिर फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है. अब आपको मिलेगा भी नहीं जनरली, मैंने देखा है, आई हैव सीन रोमन रूबी नोट, बट आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन दिस जनरेशन हैव सीन और नॉट, बिकॉज़ अब शायद नहीं मिलेगा, है ना. खैर, संगीता कालीनिधि अवार्ड recently who has got? This is an award in the field of music etc, है ना. किसको दिया गया है? म्यूजिक में अवार्ड वगैरह दिया था. Who has got this award? The right answer is R.K. Shriram Kumar. So A is the right answer to this question. ठीक है. तो A is the right answer. ये हाईएस्ट अवार्ड है कार्नेटिक म्यूजिक में, ये आप याद रख सकते हो, ऑस्कर में, ठीक है. दैट इज व्हाट यू शुड नो. देखो मैं कुछ तरीका बताऊं याद करने का. देखो इसमें संगीता कालीनिधि अवार्ड है ना, और इनका जो नाम है वो आरके करके, SK आर के श्री राम कुमार, ठीक है.
तो थोड़ा सा हेल्पफुल होगा एग्जाम हॉल में याद करने में। अच्छा RSK अवार्ड समथिंग था, सर ने बताया था RK करके उनका नाम था, है ना, RK श्रीराम कुमार। दिस इज जस्ट अ वे टू रिमेम्बर, ठीक है, सिर्फ याद ताकि एग्जाम में हेड कर जाए अगर तो क्वेश्चन है तो, है ना। Let's move on here. This one is also we are skipping. And let's move on. Name the first port in India to handle cargo of more than 200 million metric ton. This is the largest private port in India, है ना, port private limited, है ना. So largest मतलब which actually has having maximum, है ना, weight, है ना, 200 million metric ton है actually, million metric ton. Yes, the right answer is Adani Mundra Port. Here in Gujarat, you will find Adani Mundra Port. Is the right answer. Yes, Kushagra Saxena, Priyansh Gupta, you are right. So, आपने देखा होगा, काफी न्यूज़ में था. Okay, let's move on to the next one. Recently, which country has decided to withdraw from International Criminal Court after hosting Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu? Because the ICC has actually issued arrest warrant against, है ना, this person. तो ICC जो है एक तरह का क्रिमिनल कोर्ट है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? प्लीज टेल मी हेडक्वार्टर कहाँ है? और ये रोम स्टैट्यूट के रिजल्ट में एक तरह का एग्रीमेंट हुआ था 2002 में, उसके रिजल्ट में बना था ये, which can prosecute person for war crimes etc. against humanity. Yes, हंगारी ने विड्रॉ कर लिया ICC से. Yes, इसका हेडक्वार्टर है द हेग. वेरी गुड, प्रयास गुप्ता, राइट. यस, कुशाग्रा सक्सेना इज राइट, है ना. तो हंगारी हैज विड्रॉन फ्रॉम इट. अगर आपको इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डिटेल में पूछना है, पढ़ना है, तो आप ये सर्च करना. यू विल गेट दिस वीडियो. वी हैव मेड दिस वीडियो ऑन आवर लॉ डिफेंस चैनल, तो आप जाके देख सकते हो उसको भी. हाँ, द हेग नेदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का. ठीक है, आईसीसी के जो मेंबर्स हैं, देखो आईसीसी जो है द हेग में इसका हेडक्वार्टर है, और ये आईसीजे से डिफरेंट है. ठीक है, आईसीजे जो होता है, दिस इज अ वर्ल्ड कोर्ट, दिस इज ये यूएन की कोर्ट होती है. आईसीसी का यूनाइटेड नेशन से कुछ लेना देना नहीं है, ये अलग से 2002 में एस्टैब्लिश हुआ था रोम स्टैट्यूट के रिजल्ट में. दैट इज व्हाट यू शुड नो. और इसका काम क्या है? केस चलाना, टू इनिशिएट अ केस अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, जेनोसाइड्स और क्राइम ऑफ एग्रेशन. ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. तो जो रेड वाला है, अगर आप देखो, इंडिया जो है वो पार्टी नहीं है इसके, ना, नॉट अ स्टेट पार्टी. जो ग्रीन वन से वो उसके पार्ट है रोम स्टैट्यूट के, यानी आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को साइन किया. ठीक है, द नेक्स्ट इज अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि लॉन्ग स्नॉटेड वाइन स्नेक वाज फाउंड रिसेंटली डिस्कवर्ड. कहां? जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, दुधवा, सुंदरबन. Where will you find long snouted wine snake recently discovered? Yes, कहाँ मिलेगा? दुधवा टाइगर रिजर्व. You'll find it in Pilibhit, है ना, in Uttar Pradesh. ठीक है, so C is the right answer. ना, covered in दुधवा टाइगर रिजर्व. Yes, yes, Priyash Gupta, you're right. Kushagra Saxena, you're right. C is the right answer to this question. The next is yes, ये important. अभी recently मनोज कुमार नाम के एक एक्टर है, उनकी डेथ हो गई थी. उनका एक और निक नेम था, कोई बता सकता है? What was that? What was that nickname? Yes, कुशाग्रा, right. भरत कुमार. So आप देख सकते हो, मनोज कुमार, है ना, his nickname was भारत कुमार. उनको पद्मश्री भी मिला था 1992 में. He had got दादा साहब फाल्के अवार्ड also 2015 में. ठीक है, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा है, इन द फील्ड ऑफ सिनेमा. और पद्मश्री अवार्ड फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना. फर्स्ट हाईएस्ट भारत रत्न है, फिर सेकंड पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री. फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी इनको मिला था. और हाईएस्ट अवार्ड सिनेमा की फील्ड में दादा साहब फाल्के अवार्ड. ठीक है, सो अभी उनकी डेथ हो गई थी 4 अप्रैल को, लास्ट मंथ. दैट इज व्हाई ही वाज वेरी मच इन द न्यूज़.
हाँ लास्ट ईयर मिथुन चक्रवर्ती को मिला था, राइट, प्रियांश गुप्ता, राइट। हाँ, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Recently PM Modi was given an award in Sri Lanka, India, for India Sri Lanka ties, है ना, उस अवार्ड का नाम बताना है। What is the name of the award? highest civilian award. Yes, Kushagra, Priyansh Gupta, you are right. Sri Lanka Mitra Vibhushan is the right answer to this question. ठीक है, आप देख सकते हो he is with the president of Sri Lanka. ठीक है, the next one, हाँ, नेम द रेनॉल्ड इंडियन आर्टिस्ट, ये बहुत फेमस इंडिया के सैंड आर्टिस्ट है, उनका ये सब कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, उन्होंने ही बनाया है, जिनको फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड मिला। तो सैंड आर्टिस्ट इसको कहते हैं ना, ये वर्क को सैंड आर्टिस्ट एक प्रोफेशन होता है वेयर एक्चुअली सैंड से आप कोई एक आर्ट बनाते हो, है ना, एंड दिस पर्सन इज वेरी फेमस। यस, सुदर्शन पटनायक, राइट, कुशाग्रा, प्रियांश गुप्ता, यू आर राइट। ये काफी फेमस है सुदर्शन पटनायक, आपने अक्सर देखा हो, कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है ना तो उस पर वो सैंड आर्ट बनाते हैं, ठीक है। So that is why he remains in the news and first when you get Fred's direct and master what. So that is what you should be knowing. The next is World Health Day कब सेलिब्रेट किया जाता है and why भी बताना, why. Yes, Priyansh Gupta, Kushagra Saxena, you both right. 7th April 2025, because 7th April 1948 वो क्या बना था? हाँ, वेरी गुड कुशाग्रा, WHO was established, ठीक है, और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है WHO का, बताइए तो, और इनके डायरेक्टर जनरल का नाम बताइए। और इस साल जो वर्ल्ड हेल्थ डे है उसकी थीम क्या थी? यही थीम थी, हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर, ठीक है। हाँ, हेडक्वार्टर जेनेवा में, जो कि एक जगह है स्विट्जरलैंड में, दिस इज अ प्लेस इन स्विट्जरलैंड। एंड यस कुशाग्रा, यू आर आल्सो राइट, जेनेवा स्विट्जरलैंड में जगह है। प्रियांश गुप्ता, यू आर आल्सो राइट। थीम तो सामने लिखा है, डायरेक्टर जनरल का नाम बता सकते हो? WHO, बिकॉज कोविड के टाइम पे खास इनका नाम बहुत आ रहा था, सो ही वाज वेरी मच इन द न्यूज़ ड्यूरिंग कोविड। अब तो उतना नहीं आ रहा नाम, बट उस टाइम पे था टेड्रोस एथनॉम घेब्रेयेसस। Yes, Priyansh Gupta, you're right. The right answer is C is the right answer. Yes. ठीक है. Now let's move on to the another question. कौन सी बॉडी है, कौन सा कंट्री है जिसने प्रपोज किया है एक क्लाइमेट चेंज काउंसिल बनाया जाए UNFCCC के अंडर में, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके अंडर हर साल जो है ना इन्वायरमेंट मीटिंग होती है, एवरी ईयर इन्वायरमेंट मीटिंग हैपन, उसको हम लोग कॉप नाम से जानते हैं ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इस साल COP30 होने वाला है, वेयर इट इज गोइंग टू हैपन COP30? यस, ब्राजील में होने जा रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट हैज गिवन दिस नेम, क्लाइमेट चेंज काउंसिल बनाने की बात की है। बेलेम जगह है ब्राजील में, देयर एक्चुअली इट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। यस, इफ यू वांट टू नो अबाउट UNFCCC, अगर आप UNFCCC के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो ये मैंने क्लास लिया है, इसको सर्च करना YouTube पे जाके, यू विल गेट दिस क्लास। ये दिस इज ऑन आवर लॉ इन प्रिंस चैनल, तो आप जाके देखोगे, उसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है ना। सो ब्राजील ने प्रपोज किया क्लाइमेट चेंज काउंसिल, है ना। इस साल जो है COP30, सो हियर इज इंडिया, दिस इज ब्राजील, यहाँ पे बेले में यहाँ COP30 होने जा रहा है, ठीक है। दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। The next is Union Cabinet has approved the second phase of Dash for the development of select villages along international borders. ये 1-2 साल पहले बजट में काफी न्यूज में था, और दे आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आता है कई बार एग्जाम में जो न्यूज वगैरह में होता है।
एक्चुअली इसको कहते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वीवीपी, ठीक है। सो बेसिकली इसमें है क्या चीज, जो बॉर्डरिंग एरियाज में जो लोग रहते हैं, दोज हु आर लिविंग इन बॉर्डरिंग एरियाज, तो एक्चुअली क्या होता है, इंफॉर्मेशन बहुत सारी चीज लोकल पीपल को पता होती है इन बॉर्डरिंग एरियाज, यस। एंड अगर वो लोकल पीपल उस बॉर्डर से हट गए, मान लीजिए वहां पे डेवलपमेंट नहीं हुआ और अंदर आ गए, तो जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन लोकल से मिलती है बॉर्डरिंग एरिया से रिलेटेड, वो नहीं मिल पाएगी मतलब मिलिट्री को। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द पीपल लिविंग इन द बॉर्डरिंग एरिया शुड डेवलप। तो उसके लिए एक इनिशिएटिव है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, बहुत फेमस है ये, अरुणाचल, हिमाचल, सिक्किम, उत्तराखंड और यूटी ऑफ लद्दाख के लिए, मतलब इस रीजन के लिए, यहाँ पे जो चाइना वाले बॉर्डर वाले रीजन के लिए, ठीक है। मतलब कश्मीर के लिए नहीं, मतलब लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल, इस रीजन में, ठीक है। दैट इज व्हाट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 19 डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है। तो अभी सेकंड फेज उसको स्टार्ट करने की बात की जा रही थी, सो दैट इज व्हाई इट वाज वेरी मच इन द न्यूज़, सो सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। रिसेंटली पीएम मोदी इनॉग्रेटेड अ न्यू पाम्बन ब्रिज इन तमिलनाडु, इसकी लेंथ कितना आपको बताना है? एनीवन? 1.72, 1.87, 2.02, 2.07। अच्छा, ये पता ओपन हो जाता है से, तो ये तमिलनाडु है ना स्टेट, ये श्रीलंका है, यहाँ पर पाक स्टेट है ना, पाक स्टेट वाला रीजन है, इसी रीजन में आपको मिलेगा this Pamban bridge you will find. Yes, actually the right answer is D, 2.07 kilometer. Yes, Priyansh Gupta, you're right. ठीक है, Pamban bridge, ठीक है, ऐसे ओपन हो जाता है, okay, yes, it can open and the people can go, the ship can go. ठीक है, the next is who has recently won Japanese Grand Prix. Grand Prix ब्रिक्स लिखा जाता है, ये फार्मूला 1, ये सब टर्म देखो समझ लेना, कार रेस की बात हो रही है। ग्रैंड प्री लिखते हैं, हम ब्रिक्स लिखते हैं बट प्री पढ़ते हैं, ये कार रेस आपने देखा होगा, आई एम श्योर, इस तरह का। तो किसने जीता है जापानीज ग्रैंड प्री? राइट आंसर इज यस, मैक्स वर्स्टैपेन, ये एक्चुअली अक्सर जीते हैं, ठीक है। सो इफ यू डू नॉट रिमेंबर देन अगर आप इनका तुक्का मारोगे तो चांस ज्यादा है सही होने का, because he is a very good player. Yes, Kushagra, you are also right. Let's move on to the next one. Who presented key to the city of Lisbon to President Draupadi Murmu on her official visit to Portugal? देखो, पोर्चुगल की कैपिटल है लिस्बन, तो सिटी ऑफ लिस्बन अवार्ड कौन देंगे? शहर से रिलेटेड है, अगर कंट्री से रिलेटेड होता तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वगैरह देते, जाहिर सी बात कौन देंगे, सोचो। It is talking about a particular city, city of Lisbon award. The capital is of Portugal is Lisbon, so it must be given by the mayor or head of the district, so something like that. Yes, C is the right answer. He is the mayor of Lisbon. Yes, Kushagra, Priyansh Gupta, you are right. C is the right answer. The next is which of the following Bengali delicacies recently received GI tag? कौन सी बंगाल की मिठाई जिसको GI टैग मिला है? रसगुल्ला, नोलेन, गुरेज संदेश, मिष्टी दोई, पंतुआ। Anyone? Yes, Priyansh Gupta, you're right. संदेश, ठीक है, बहुत फेमस मिठाई होती है संदेश नाम से वेस्ट बंगाल में, ये है, ठीक है ना। एंड इसके अलावा भी और 5 आइटम्स को मिला है GI टैग, ठीक है ना, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। दैट इज व्हाट यू शुड नो। नोलेन, गुरेज संदेश, द राइट आंसर इज बी, इज द राइट आंसर, है ना। और पहला GI टैग, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछा था कि फर्स्ट GI टैग किसको दिया गया था इंडिया में? तो द आंसर इज दार्जिलिंग टी, ठीक है। प्लीज रिमेंबर इट बिकॉज यू शुड बी नोइंग इट। अगर आपको डिटेल पढ़ना तो आप ये सर्च करना, आई हैड मेड अ वीडियो, बट एटलीस्ट ये पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट GI टैग हु हैड गॉट, ठीक है। The next is recently Supreme Court of India ने एक अग्रीमेंट MOU साइन किया। MOU मतलब जहां पढ़ो ना उसको अग्रीमेंट पढ़ लेना, एक तरह का अग्रीमेंट, डील, समथिंग लाइक दैट, साइन किया है। तो जुडिशियल कोऑपरेशन इंक्रीज करने के लिए कौन से सुप्रीम कोर्ट, ये कौन से कंट्री से, मतलब इस तरह से अगर कोऑपरेशन होगा तो हो सकता है कुछ डेटा, कुछ आइडियाज शेयर किया जाए, है ना, दैट इज द आइडिया।
और कुछ इसमें इतना डिटेल नहीं जाना। आंसर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल से, ठीक है। MOU signed between Supreme Courts of India and Nepal, ठीक है। A is the right answer. To enhance judicial cooperation between the two countries. Okay, so A is the right answer. Yes, Priyansh Gupta right now. ठीक है, थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेना आप। नो ये काफी न्यूज में था, दैट इज व्हाई आई एम हाइलाइटिंग इट रिसेंटली रिगार्डिंग द डिसीजन ऑफ तमिलनाडु गवर्नर। इस कॉन्टेक्स्ट में दिस वाज इन द न्यूज। According to the Supreme Court of judgment under 200 article of Indian Constitution, which of the following is not a valid course of action for governor once a bill is presented? Anyone? Yes, exercising pocket veto, because pocket veto का मतलब है कि I will not do anything, I will not take any action. Neither I will reject the bill nor I will send back or do anything. It is not directly mentioned, but Article 200 में timeline नहीं mentioned है, deadline नहीं mentioned है कि you have to, like if a legislative assembly passes a bill goes to the governor, then governor has to sign it within 2 months, 3 months, something like that. तो deadline नहीं mentioned था, तो इसका मतलब क्या, पॉकेट वीटो हो सकता था कि गवर्नर विल नॉट डू एनीथिंग, इट विल नॉट सेंड बैक, इट विल नॉट साइन और इट विल नॉट रिजेक्ट। सो उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आई विल पुट अ टाइमलाइन आल्सो। सो द सुप्रीम कोर्ट पुट द टाइमलाइन और डेडलाइन, ठीक है। तो ये डेडलाइन लगा दिया था, इफ यू वांट टू विथहोल्ड दैट सेट, विथहोल्ड का मतलब होता है रिजेक्ट द बिल, देन डू इट इन 1 month. If you are withholding assent, rejecting the bill without or against the advice of the government or the cabinet ministers, then 3 months are time, है ना, in case. And if you have sent the bill back to the legislative assembly and the legislative assembly again sends you back, then you have to do it in 1 month. मतलब एक तरह से rough idea लो कि now you cannot exercise pocket veto. That is what the Supreme Court said. Okay, means there are deadlines and you have to follow those deadlines. So ये काफी उस टाइम पर न्यूज में था, these things were in the news. And that is why you should be knowing. Okay, Tamil Nadu governor context mein, yes, Mr. R.N. Ravi is the governor of Tamil Nadu. So since this was in the news, this can be asked. Okay. Okay. है ना? So ये तो मैंने already discuss किए थे. A nearly 2-year-old war, a 2-year-old war has engulfed dash in the world's largest humanitarian crisis and led African country to become only nation experiencing famine. पिछले 2-2.5 साल 3 साल में यहाँ जंग हो रही है, एक्चुअली एक तरह का सिविल वॉर हो रहा है, और इससे ना फैमिली लाइक सिचुएशन आ गया। एक्चुअली हुआ ये मिलिट्री वर्सेस पारा मिलिट्री यहाँ जंग हो रही है, मतलब आपस ही में लड़ गए दोनों। मतलब गॉड फॉरबिड, जैसे आप ऐसे समझ लो, फॉर एग्जांपल गॉड फॉरबिड इफ इंडियन आर्मी एंड सीआरपीएफ स्टार्ट्स फाइटिंग, गॉड फॉरबिड, समथिंग सिमिलर इज हैपनिंग इन सूडान। मतलब जो पारा मिलिट्री फोर्स है वहां की और जो मिलिट्री आर्मी है, दोनों आपस में लड़ गई। आई मीन दे आर फाइटिंग ईच अदर, सो इमेजिन व्हाट विल हैपन टू द कंट्री। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, दैट्स कॉल्ड एज इट्स एक्चुअली हैपनिंग इन सूडान। एंड सूडान सिविल वॉर के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो पिछले 2 साल में देखो, एक है सूडान आर्म फोर्सेस और एक है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। सो दिस इज लाइक समथिंग सिमिलर टू पारामिलिट्री, जैसे मान लो समथिंग सिमिलर जैसे इंडिया में सीआरपीएफ टाइप समथिंग, और ये इनकी आर्मी है। एंड इमेजिन बोथ आर फाइटिंग ईच अदर, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, व्हाट विल हैपन? सो द ऑफ कोर्स द कंट्री विल गो इन द फैमिली, बहुत बुरे हाल में हो जाएंगे, है ना। सो दैट इज व्हाट इज देयर एंड ऑल। इसकी कैपिटल खार्तूम है, एंड दैट इज व्हाट यू शुड नो। सो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, रिसेंटली स्काई ट्रैक्स ने रिलीज किया है, 5 स्टार रेटिंग दिया है कौन से एयरपोर्ट टर्मिनल को इंडिया के? What is the right answer? Anyone? The right answer is T2 है ना, Kempegowda International Airport, T2 है ना, for 5 स्टार रेटिंग दिया Skytrax ने। So C is the right answer. Yes, Priyansh Gupta, you are right. C is the right answer. अच्छा, Skytrax ने बेस्ट एयरपोर्ट का रैंकिंग किसको दिया पूरे वर्ल्ड में? जापान टोक्यो एयरपोर्ट, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, इंडियाज इंदिरा गांधी, स्पेलिंग गड़बड़ हो गया, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट,
चाइना शंघाई एयरपोर्ट, तो फोटो भी लगा दिया उसका, which one I'm talking about. Yes, Priyansh Gupta, you're right. Singapore Changi Airport is the right answer. ठीक है, ये सब जो फोटो है सिंगापुर की चांगी एयरपोर्ट की, here is India, this is Singapore. ठीक है, that is what you should be knowing about. So tomorrow we'll be meeting you. Wednesday को 7 PM पे again we'll be doing the same revision series. ठीक है, so do join me tomorrow at 7 PM. Please subscribe to the channel, press the like button, share this video. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.